Okay, so let's say if you look at the question, how to approach and start writing answers. Now, when you have to write answers, let's take a question from the current affairs topic itself. Okay, in a welfare state, health for all should be a legal imperative. सबको हेल्थ मिलना एक लीगल imperative means होना चाहिए, right? So health for all in a welfare state. So what do you do? First step to write an answer. पहला step क्या है? Have you understood the question? Ask yourself. क्या मुझे क्वेश्चन समझ में आया है? If yes or no, ask yourself. If you don't know, not understood, try to read it again, decode it. If you understood, ये कह रहे हैं कि हेल्थ फॉर ऑल एक वेलफेयर स्टेट में, कल्याणकारी राज्य में सबको हेल्थ फैसिलिटी मिलना एक लीगल इंपेरेटिव होना चाहिए. लीगली आपको लीगल राइट होना चाहिए हेल्थ मिलना. दैट इज व्हाट इट सेज. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. कीवर्ड्स अराउंड विच योर आंसर्स हैव टू बी कम्युनिकेटेड. पहला है, फर्स्ट कीवर्ड इज वेलफेयर स्टेट. नाउ व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? That is the first question. Second is health for all. Health for all. And third is as a legal right. As a legal right. Legally, by law, you should be given that right to have access to health care. Okay? तो अब ये तीन कीवर्ड हो गए. वेलफेयर स्टेट, हेल्थ फॉर ऑल एंड लीगल राइट. तीनों को इंटरलिंक करना है. वेलफेयर स्टेट. The concept of welfare state means every citizen of the country is a children of the republic, are children of the republic, thereby as a matter of welfare, it should be given to all. Welfare होना चाहिए सबका. And government should take care of you. This concept came 100 years ago. When जब society develop हुई, थोड़ा सा empower हुई, they had resources, they realized that the concept of nation depends on the welfare of the citizen, and thereby state should take care of the citizens. State को अपने citizen का take care करना चाहिए, and every citizen is a children of the republic in a democratic setup. So welfare is the primary. Then again we'll identify, so welfare state में सबका welfare करना है. That is why public health is for all. तो आपने ये keyword identify किए. Then the first step would be writing an introduction. आपको introduction start करना है. How do I start? पहला लाइन क्या होना चाहिए? First word क्या होना चाहिए? Right? So how do I can say? Let's write public health care is essential for human dignity in a welfare state. मैंने ऐसे ही सोच लिया, मैंने ऑन द स्पॉट सोचा एंड आई इम्प्रोवाइज एंड राइट. ठीक है. देन यू कैन ऐड अ डेटा.
Okay. Then if you want to explain welfare state, you can say that a welfare state seeks inclusion and development. Okay. Now ठीक है, अब क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी, कमेंट. Comment is like a commentary, you're commenting. So welfare state, health for all should be a legal imperative. तो ये आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, एक लाइन और प्री बॉडी कर दिया, इसको प्री बॉडी बोलते हैं, बॉडी से पहले इंटरलिंकिंग. देन यू कम टू द बॉडी. अब आपने सब हेडलाइन कर दिया. Now you can write point 1, 2, 3, 4 like this. अब इसमें क्या लिखोगे, लीगल इंपेरेटिव, हाउ हेल्थ एज ए लीगल इंपेरेटिव, वाई इट शुड बी गिवन. पहली बात तो वाई, सेकेंड इज हाउ, क्यों देना चाहिए. हाँ, कहाँ पे, नहीं, इंट्रोडक्शन शुड बी पैराग्राफ, बना सकते हैं बट अगेन देयर इज नो रूल डिफाइंड. बट पहले कॉन्टेक्स्ट तो समझाओ, क्या कहना चाहते हो, पहले फ्लो चार्ट बना दिया. हाँ, नहीं, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, देन यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट. आप चाहें तो उसका फ्लो चार्ट तीनों का मिलकर के फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं. सो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई डू वी नीड, हाउ, व्हाई, बिकॉज access to healthcare is essential to human living dignity. It is an important part of human capital, social capital, sorry, human capital or human development. Then why, also why, because a huge number of population are vulnerable and they cannot seek good health care because of limited resources or low income. It is also important for productivity. Then comes how, by empowering the healthcare centers, increasing the. तो यहां पर आप वाई, ऐसे फ्लो चार्ट वाई भी कर सकते हो एंड हाउ. यू कैन राइट 1, 2, 3, 4, यू कैन राइट 1, 2, 3, 4, देन 2 लाइन्स ऑफ कंक्लूजन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, अब वाई में क्या लिखना है, चलो सोच लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. वाई हेल्थ शुड बी गिवन एज अ लीगल राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ इज लाइक अ लीगल राइट. लीगली यू शुड बी गिवन हेल्थ केयर. Legally, if you go to the hospital, doctor अगर वो treat नहीं करता, that person is legally, you can maybe put that person behind bar. Legally, you have not treated the patient. और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट नहीं अच्छे से हो रहा है, the people in the government hospital should be legally responsible. तो legal responsible थोड़ा मुश्किल होता है, but I'm just, मैंने एक hypothetical question बना दिया. Why? Because as a human, it's a part of human right. Why? As a human right, as a human, आपका राइट है ना, क्वालिटी हेल्थ केयर, क्लीन एनवायरमेंट, यू नो, लिबर्टी, डिग्निटी. कैसे भी लिखो, कैसे भी लिखो, या तो 1, 2, 3 लिख दो या बुलेट पॉइंट बना दो. अगर लिखोगे तो काउंट हो जाता है कि हाँ, इफ द काउंट रहेगा तो अच्छा रहेगा. आपने 8 पॉइंट्स लिखा, सो मेरा काम आसान कर दो. आई विल नॉट काउंट इट. ओके, यू हैव रिटन 8 पॉइंट्स, यू कैन डू दैट. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने यहाँ लाइन खींचा या 1, 2, 3 किया. इंपॉर्टेंट ये कि आपने लिखा क्या. डिड यू राइट राइट और रेलेवेंट और नॉट, दैट इज की. ठीक है ना. देन हाउ, कैसे देंगे. स्पेंडिंग मोर एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ केयर. ओके,
more recruitment, more public health care, officials, doctors, capacity building, more social infrastructure, more hospitals. Third, better coordination between center, मतलब ऐसे करके आप सोच सकते हो. And then conclusion of 2 lines. And health for all, is importance to achieve the goal of Vikshit Bharat by 2047. ऐसे करके आपने conclude कर दिया. So the point I want to make here is that answer writing में logically सोचो, time नहीं होता है वहाँ पे. You have to write this in 7 minutes, 8 minutes. You have to write this in 7 or 8 minutes. तो जितना आप practice करोगे, improvise करोगे चीज़ें, मैंने तो ऐसे सोचा क्वेश्चन और सोचना स्टार्ट कर दिया. बट वेन यूल राइट यू हैव नोट्स रेडी, आप रिवाइज करके जाते हो, बट स्टिल यू हैव टू इम्प्रोवाइज देयर, यू हैव टू थिंक ऑन द क्वेश्चन. ये काम को जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना बेटर रहेगा. इनकॉर्पोरेट दैट. आई ऑलवेज टेल फॉलो 15 मिनट्स रूल. 15 मिनट रूल. 15 मिनट में क्या है? 15 मिनट एवरी डे शुड बी इन्वेस्टेड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग. थर्ड इज राइटिंग. आप 15 मिनट एवरेज डेली दो ब्रेनस्टॉर्म करने में. ब्रेनस्टॉर्म मीन्स थिंक ऑन द टॉपिक, ब्रूड ऑन द टॉपिक, एनालाइज इट, आस्क क्वेश्चंस. क्या, व्हाई, हाउ कैन आई राइट ऑन दिस टॉपिक? मोमेंट आई आस्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैन यू थिंक ऑन दैट? नहीं पता है, चलो पढ़ लेते हैं. यू रेड द टॉपिक. आपने एक टॉपिक आज पढ़ा, कैन यू राइट ऑन दैट? आस्क योर सेल्फ, थिंक ऑन दैट. मे बी 2 minutes, 5 minutes, मेक अ फ्लो चार्ट. कैन यू राइट 2 lines? Then comes a time where you improve it. Okay? तो ये thought process develop करना जरूरी है. And then writing. When I'm thinking, explaining something, तो we are developing a thought process. तो answer writing 15 minutes मतलब इसको आप daily follow करो 5 days a week. 5 days a week. अगर आप ये करोगे 10 से 15 मिनट एवरेज, anyway पढ़ते हो तो 10 मिनट तो दे ही सकते हो ना. Just you will learn the process of writing answers. You ऐसा memorize नहीं करना पड़ेगा. A time will come where answer writing becomes very natural to you. A lot of people know how to write. A lot will depend also आपने schooling कैसे किया है, स्कूल में पढ़ाई कैसा हुआ है, did you learn the art of writing, communication or not. अगर नहीं किया तो सीखना पड़ेगा. It will take few months, maybe days or months to reach here. ठीक है ना? और यही काम तो करने आए हैं. What if your prelims निकले और mains निकले? I'll give you a data. Out of 15,000 people who clear the prelims, 15,000 लोग जो prelims निकालते हैं, 11 to 12,000 people do not know how to write. 11 to 12,000 people do not know how to write. क्यों? It's not part of the ecosystem. Knowledge बहुत है. किताब की किताब, information, Bayer Act याद है उनको, articles याद है, factual information याद है. But if I tell them write in a 7 minute, they will get flummoxed. अरे, और उनका फोकस किताब पढ़ने पे ज़्यादा रहता है. और पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें. पढ़ लो, एक और किताब लिख देना. ऐसी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं. सिलेक्शन पाना है ना. यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन. एम आई राइट? ये थोड़ी कि हाँ मैंने 50 किताब पढ़ा, ग्रीन्स बुक में नाम आ जाएगा. एग्जाम निकालने में प्रैक्टिकली सोचना होगा. हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू एग्जैक्टली? वी आर जस्ट पुटिंग एफर्ट. थोड़ा सा जुडिशियस हो जाओ, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ, थोड़ा सा आस्क व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपी. एंड ज़्यादा नहीं, कम अच्छे से पढ़ो. इतना नहीं आएगा लिखने को. और इवन इफ यू नो हाउ डज इट मैटर, यू कांट राइट. ज़्यादा पढ़ भी लिया तो लिख नहीं पाएंगे. हाँ, आंसर राइटिंग इज ऑल्सो अबाउट एनालिटिकल स्किल्स. सो यू हैव टू थिंक, इंटरप्रेट, बिकॉज सडनली अ क्वेश्चन एंड टॉपिक माइट बी न्यू, यूनिक. वो क्वेश्चन यूनिक होगा, आपने शायद किया नहीं होगा पहले. तो यू हैव टू थिंक मेनी टाइम्स. और कई बार ऐसा चीज़ें आपको पता है बट आपने यू हैव नॉट गिवन इवन थॉट टू दैट. सो दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट. तो हमको 15 मिनट रूल को आप हफ्ते में 4 days 5 days फॉलो करो. जो पढ़ा है उस टॉपिक को, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है, ओके, थिंक अबाउट ग्लोबलाइजेशन. कैन आई राइट समथिंग अबाउट, कैन आई मेक अ फ्लो चार्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन, कैन आई डिफाइन इट इन माई ओन लैंग्वेज, डू आई हैव अ डेटा इन फैक्ट ऑन दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इफ आई हैव रेड एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं. एनसीईआरटी का पीछे आप देखो, देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस. जस्ट कैन आई राइट दिस क्वेश्चंस, वो भी बहुत इजी है. सटल वे ऑफ डेवलपिंग, आपका राइटिंग स्किल अपने आप अच्छा हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज तो एनीवे वो स्टेप बाय स्टेप वहां पहुंच जाएंगे. ठीक है ना?
आई होप दैट इज क्लियर। क्लियर हुआ? तो अगली बार आंसर राइटिंग बेटर होगा। चलो